So, class 9 physics, force 11, Newton's second law. Okay, we are taking an application based question and we have to understand which of the concepts, we've done 3 concepts on third law, which of those concepts has to be applied. हमें नहीं पता कि कौन सा proportional क्या है, क्या constant है, क्या हो रहा है, हमें नहीं पता, but हमें अपने दिमाग से सोचना है. ठीक है, let's understand the question. The acceleration due to earth is fixed. ये हम सबको पता है. जो earth का gravitational pull है, that is fixed, is 9.8 meter per second square. Okay. Then what is happening? There's a brick of 2 kgs which is falling down, and there's a apple of 0.25 kgs which is falling down. And heavy object is falling down, and a light object is falling down. 2 kgs, an apple of 0.2 kgs is falling down. Now, what we have to tell, which of them will experience more gravitational force? This is what we have to answer, and why and how much. Okay, so this is the brick which is falling down, this is the apple which is light, this is heavy, this is light. Mass is more, mass is less. Okay, now we have to see, is the earth applying same force on both of them, different forces, how? Now how will we analyze it? पता नहीं कितनी सारी तो चीज़ें हैं, अब हमें क्या पता? Let's start. Acceleration due to gravity of earth is fixed 9.8. So when we have this basic equation that we know. So can we write in the solution that acceleration is 9.8 meter per second and it is fixed, it is constant for both the objects. The moment we realize this fact, जैसे आपको ये बात realize हो जाती है कि दोनों का acceleration will have to be 9.8, here also the acceleration will have to be 9.8. एक चीज़ constant हो गई, एक चीज़ इसमें तो a है ही नहीं तो उसको छोड़ दो. So we'll focus on only F is equal to ma, right? अब एक चीज़ constant हो गई है, तो रिलेशन किसके बीच में बनाना है? We have to find relation between force and mass. इसके बीच में हमें रिलेशन सोचना है. अब ये दोनों ऊपर ऊपर ही हैं, न्यूमरेटर में, इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए. दैट मीन्स फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मास. इसका क्या मतलब हुआ? अगर मास ज़्यादा होगा तो फोर्स ज़्यादा होगी. आई होप एबल टू गेट द स्टेप्स. हमें पहले ही पता चल गया कि दोनों ऑब्जेक्ट्स का एक्सेलरेशन फिक्स्ड है 9.8. तो अब बचा क्या? एफ और एम बचे, दोनों न्यूमरेटर में है तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे. हमें पता चल गया कि अगर मास ज़्यादा होगा तो फोर्स भी ज़्यादा हो गई. अब थ्योरेटिकली तो हमें पता चल गया ये हैवी है, मास ज़्यादा है, तो इसके ऊपर फोर्स कैसी होगी? मास इज मोर, सो फोर्स विल बी मोर. हियर मास इज लेस, so force will be less. Finished. So they have asked us which will experience more gravitational force. So the brick will experience more gravitational force. Now let's prove them mathematically only. Brick के लिए how much will be the force? Force will be इसका mass और इसका acceleration. इसका mass क्या है? 2. Acceleration is 9.8. So force of the brick will be 19.6 Newton. Okay? अभी हमने क्या प्रिडिक्ट किया हुआ है? थियोरेटिकली ये फोर्स ज़्यादा होने वाली है, ब्रिक की फोर्स ज़्यादा होने वाली है. अब हम एप्पल की फोर्स कैलकुलेट करते हैं. एप्पल की फोर्स विल बी अगेन ma, that is 0.25 into 9.8. My God, who will do this calculation? You will do this calculation. So the force on the apple will be
4 2 8, 1 16.4, 1642.9545 न्यूटन. I am not going to, अगर मिस्टेक हो गई तो not my fault, please you calculate it. But ओवरऑल क्या प्रूव हुआ कि ब्रिक के ऊपर 19 फोर्स है, एप्पल के ऊपर 2 फोर्स है. ब्रिक के ऊपर मोर फोर्स है, एप्पल के ऊपर लेस फोर्स. समझ आया क्यों? क्योंकि हमें पहले से पता चल गया क्वेश्चन से कि उन दोनों का एक्सेलरेशन सेम है. तो फोर्स और मास के बीच में रिलेशन निकालना है. सो हेंस वी गेट दिस. Everything gets sorted. We have done the calculation also to prove it. We could have just theoretically said that brick will experience more gravitational force. Now let's take one more example. And again we don't know which case to apply. Force and mass के बीच में relation निकालना है कि किसके बीच में relation निकालना है. All we know is कि सेकेंड लॉ यूज़ करना है. ठीक है, करते हैं. Okay, let's take the question here like this. Okay, let's take a question where okay, let's take this. There are 2 trucks. Each of mass, this is the question, okay, each of mass 10,000 kgs. I'm very happy using 10,000, 5,000. I don't take complicated values. That's for simplicity of explanation, nothing else. Each of mass 10,000 kgs. Truck A applies strong brakes of 500 newtons, and truck B applies brakes less brakes of 100 newton. Okay, so which one will speed, अब ब्रेक है तो स्पीड डाउन तो करना पड़ेगा ना, will slow down or which of them will stop after late, which one of them will stop later. मतलब कौन सा चलता जाएगा बहुत देर बाद रुकेगा और कौन सा थोड़ी देर बाद ही रुक जाएगा. I'll explain the question again. So there are 2 trucks. 2 ट्रक हैं, दोनों का मास ये है. एक ड्राइवर ने बहुत ज़ोर से ब्रेक लगा दिया, उसको कुछ दिखा के कुछ है वहाँ पे, उसने ज़ोर से ब्रेक लगा दिया. 500 न्यूटन का ब्रेक्स इज़ अ फोर्स. एंड दिस ट्रक ने बहुत आराम से चल रहा है, उसने आराम से ब्रेक लगाया, उसने छोटा सा ब्रेक लगाया, छोटी सी फोर्स लगाई 100 न्यूटन की. नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड, विच वन विल स्टॉप लेटर. स्टॉप लेटर का मतलब वैसे तो हमें समझ जाना चाहिए. स्टॉप लेटर मतलब उसकी V0 होगी, लेटर का मतलब टाइम ज़्यादा होगा, और अगर वो धीरे धीरे रुक रहा है, अब बहुत देर बाद विल स्टॉप लेटर, बहुत देर बाद जाके रुक रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन कम होगा कि ज़्यादा होएगा.
कोई चीज़ अगर बहुत धीरे चलती जा रही है, रुकी नहीं रही, बहुत ही मुश्किल से रुक रही है, तो उसका एक्सेलरेशन कैसा होता है? उसका एक्सेलरेशन लेस होता है। अगर कोई चीज़ बहुत ही मुश्किल से रुक रही है, रुकी नहीं रही, चलती जा रही है, धीरे धीरे कछुआ जैसा होता है, तो उसका एक्सेलरेशन बहुत कम होता है। सो विच ट्रक विल स्टॉप लेटर, मतलब किसका एक्सेलरेशन कम होगा, दैट इज द क्वेश्चन। Whose acceleration is less? Okay, let's see. Let's make the two trucks. This is truck 1, truck A, whose mass is 10,000 kgs. अभी हमें कुछ नहीं पता कि कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है. This is truck B, which is also of 10,000 kgs. Now what do you observe? कि mass is constant. दोनों का mass, each of mass constant हो गया. Do you realize that? That's what you have to look for, कि क्या चीज़ constant हुई है in a question. So we realize that the mass of both the trucks is constant. Now let's ahead. This applies a very high force. Here the force is high and is 500 Newton. Okay. Here the force is less and it's only 100 Newton. Now let's come to the theoretical part. The equation what we have, F is equal to ma. Now this is what is to be understood nicely. F is equal to, हमें निकालना है कौन सा लेटर रुकेगा, बहुत देर बाद रुकेगा, धीरे धीरे चलता जाएगा. इसका मतलब एक्सेलरेशन इज लेस, मास इज कांस्टेंट. दोनों का मास कांस्टेंट था. अब मास कांस्टेंट जब हुआ तो हम इसको हटा देंगे. इन दोनों का रिलेशन क्या हो गया, दोनों न्यूमरेटर में, तो ये डायरेक्टली रिलेशन में आ गए, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आ गए. ये बात ठीक है. क्योंकि मास कांस्टेंट था, हमने मास को हटा दिया इक्वेशन में से, तो बचा क्या, एफ और ए दोनों न्यूमरेटर में, दोनों प्रोपोर्शनल हो गए. दैट मीन्स अगर फोर्स हाई होगी तो एक्सेलरेशन हाई होगा. हमें कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता चल गया अगर फोर्स हाई होगी तो एक्सेलरेशन हाई होगा. ठीक है, अब देख लेते हैं फोर्स किसकी हाई है. इसकी हाई है, इन्होंने बताया. दैट मीन्स इसका एक्सेलरेशन विल बी हाई. इसकी फोर्स कम है तो इसका एक्सेलरेशन विल बी लो. कहाँ से पता चला, वहाँ से कि अगर फोर्स ज़्यादा होती है तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होता है, एंड वाइस वर्सा. मतलब ये बहुत धीरे धीरे रुकेगा, इसका एक्सेलरेशन इज लो, दिस विल स्टॉप लेटर. ये चलता जाएगा 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, फिर जाके कहीं जाके रुकेगा, और ये शायद 1-2 किलोमीटर बाद ही रुक जाएगा. चलो किलोमीटर बहुत ज़्यादा होगा, ये शायद 1 किलोमीटर बाद रुक जाएगा, ये 200-300 मीटर में रुक जाएगा. लेट्स प्रूव इट मैथमेटिकली. हमें एक्सेलरेशन निकालना है. F इज इक्वल टू ma. F हमें दिया हुआ है 500, 10,000 ये ना, हाँ. तो A, so A you get is 500 upon 10,000, 1/20, which is 0.05 meter per second square. ओके ना, हमें ये प्रूफ करना है कि ये हाई है. ये देखने में तो इतना छोटा सा लग रहा है एक्सेलरेशन, बट फिर भी इससे हाई होना चाहिए. लेट्स सी, यहाँ F इज इक्वल टू ma. दैट मीन्स 100 इज इक्वल टू 10,000 A.
So you get a upon 1 upon 1, 0.001 meter per second square. Now if I compare this acceleration and this acceleration, which is high? This is high acceleration. मतलब ये झटक के रुक जाएगा, फौरन रुक जाएगा. इसका एक्सेलरेशन स्लो है, ये धीरे धीरे ब्रेक लगा रहा है, ये धीरे धीरे घंटों में जाके रुकेगा. सो वी प्रूव्ड इट कि इसका एक्सेलरेशन कम होने वाला है, ये देर में रुकेगा. व्हाट वाज द कॉन्सेप्ट? मास वाज सेम, एक पे ज़्यादा फोर्स लगी थी, एक पे कम फोर्स लगी थी. फोर्स वाज प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन. जिस पे ज़्यादा फोर्स लगेगी उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा. एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा मतलब वो फटाफट रुक जाएगा. राइट? That's it. That's how we solve theoretical questions, whether they have told us values or no. अगर values नहीं भी दी हुई होती है ना, तो भी ये ऐसे यहाँ तक predict हो जाता है, फिर calculation नहीं करनी पड़ती. पर we can easily predict कि हुआ क्या, होगा क्या, कौन रुकेगा, कौन चलेगा, कौन तेज़ चलेगा, कितनी force लगेगी. All that we can easily predict. Go logical. It's a lot of maths involved, but just go logical. जिसने ज़्यादा ब्रेक लगाया वो फटाफट रुकेगा ही ना, इसमें कौन सी सोचने की बात है. जिसने थोड़ा सा फोर्स लगाया वो चलता रहेगा, कहाँ रुकेगा, रुकेगा ही नहीं. तो ये बहुत लॉजिकल सी चीज़ें होती हैं. मैथ्स में हम इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं. ठीक है? ऑल राइट, ऑल द बेस्ट.